2025, are you the one who's appearing for CAT 2025? When does it happen? Where does it happen? Slots, how many students appear for it? Eligibility criteria, form filling, scores, selection process, exam pattern, marking scheme, last year's CAT review, preparation time. We are going to discuss everything right now with CH Edgemakers. Right. So, what is CAT? CAT is Common Admission Test. It's a computer-based test which happens in around 350 centers, which means that everybody is accessible to write CAT, right? Where it is conducted in specific centers. As I said, it's conducted at the physical center, but it's a computer-based test. Ideally, it happens only on one day, so it happens on the last Sunday of November, but it happens on 3 slots. First is 8:30 to 10:30, second slot is 12:30 to 2:30, and the third slot happens in 4:30 to 6:30. Right. Last year, 3.29 people registered for CAT, and finally 2.93 or 92 lakh people actually wrote CAT last year, 2024. ये सब तो ठीक है. Why is CAT so hyped? Because there are reasons. CAT is a gateway to the top business schools, including IIMs. So IIMs and the top business schools accept the CAT scores. And almost all top business schools. अच्छा, एक है XLRI, which does not accept the CAT scores, which takes its own exam called XAT, Xavier's Aptitude Test. In fact, let me tell you that ISB Hyderabad has also launched one specific course which will accept the CAT scores from now. Eligibility for general candidates, 50% general candidates in NC OBC, 50% in graduation is must, and for reserved category, that is SC, ST and PWD, at least 45%, minimum of 45% in graduation is must. कौन कौन से फॉर्म्स हमें फिल करने हैं? सो फॉर्म्स, सी IIM के लिए तो CAT फॉर्म इज इनफ, राइट? बट फॉर द अदर कॉलेजेस लाइक FMS दिल्ली, MDI गुड़गांव, द IITs, IIFT, इन सब के लिए स्पेसिफिक कॉलेज फॉर्म्स आपको फिल करने होंगे. IIMs एंड द अदर टॉप बिजनेस स्कूल्स, IIMs के लिए CAT फॉर्म इज इनफ, उसमें ऑप्शन होता है एंड देन यू फिल दैट. स्कोर कार्ड, सो आफ्टर यू अपीयर फॉर CAT, स्कोर कार्ड आता है आपका. स्कोर कार्ड में रॉ स्कोर्स होते हैं. रॉ स्कोर्स मतलब द स्कोर्स व्हिच यू हैव got after writing CAT. And then there is something called scaled scores. Scaled scores matlab normalized score. Normalized score matlab it is equalized according to the level of difficulty, which means every individual will get percentile according to the scaled scores. So वो raw scores होते हैं और finally जो आपको मिलते हैं वो scaled scores होते हैं. राइट. अच्छा, हर बी स्कूल का सिलेक्शन प्रोसीजर डिफरेंट होता है, राइट? आइडियली इफ आई टॉक इन अ वेरी जनरल बेसिस, देन रिटन टेस्ट हुआ, CAT हुआ, राइट? एंड देन एवरी बी स्कूल विल हैव इट्स इंडिविजुअल प्रोसेस, लाइक some will take GD, WAT is writing ability test, PI, etc. Correct. SOP. So this is the selection procedure for every business school, and for each business school it's different. Okay. अब क्योंकि CAT आपने डिसाइड कर लिया है कि CAT 2025 अपीयर करना है, सो उसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? लास्ट 2 ईयर से एग्जाम पैटर्न सेम हो रहा है. 3 सेक्शंस होते हैं, राइट? VARC, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड QA, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? इन 3 सेक्शंस जो होते हैं, VARC में आपको 40 मिनट्स मिलते हैं और क्वेश्चंस होते हैं 24. DILR में you have 20 questions and again you get 40 minutes to solve. Quantitative aptitude में भी there are 22 questions and you get 40 minutes to solve. हर एक सेक्शन को आपको 40 मिनट्स में सॉल्व करना है एंड देन यू कैन नॉट स्विच टू द नेक्स्ट सेक्शन. इसकी सीक्वेंस क्या होती है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सेक्शन? सबसे पहले लास्ट फ्यू ईयर्स से यही ऑर्डर आ रहा है. फर्स्ट होता है VARC, देन यू गेट DILR एंड देन यू गेट द QA. Now you cannot switch the sections. When I say switching the section, which means आपको लगता है कि 40 मिनट के अंदर आपका पेपर हो चुका, आपका VARC सेक्शन हो चुका है, right? You cannot switch to the next section which is DILR.
राइट, इसी सीक्वेंस में आपको देना है, देन यू कैन नॉट स्विच ऑल्सो. 40 मिनट्स कंप्लीट होंगे, अपने आप नेक्स्ट सेक्शन में स्विच हो जाएंगे. राइट, सो द ऑर्डर ऑफ दीज सेक्शंस इज VARC, DILR एंड QA. राइट, क्वेश्चन टाइप्स कैसे होते हैं? सो दीज हैव MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एंड टीटा बेस्ड क्वेश्चंस. व्हेन आई से MCQ बेस्ड, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट 1 आंसर. उसमें अगर आपने करेक्ट आंसर मार्क किया है, you get +3. If you have attempted the question wrong, then you get -1 for every wrong answer. This is what I'm talking about MCQ, that is multiple choice question. When it comes to TITA based, that is type in the answer, TITA, TITA questions, जहां पर आपको options नहीं मिलते हैं और answers type करने होते हैं. You have +3 for every correct TITA question and no negative marking for the wrong answer. That is TITA based. Acha, last year there were 48 questions for MCQs and there were 18 questions in total for TITA based questions. Right? अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात करते हैं, सी फ्रैंकली स्पीकिंग कैट का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है. राइट, बट देन अगर मैं जनरल बात करूंगी, सो 10th का मैथ और इंग्लिश, बट विद द ट्रिकी ट्विस्ट. राइट, व्हाई? बिकॉज कोर्स वही है, डिफाइंड सिलेबस है नहीं. राइट, बट जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है उस एप्लीकेशन बेस्ड, उनका एप्लीकेशन कैट में आता है. सो दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, विद द ट्रिकी ट्विस्ट in the questions. Preparation time, ideally 1 year of focused study is enough for CAT preparation, right? And then it really depends on, which area you're strong at, what kind of student are you, कौन सी चीजें, कौन से एरिया सेक्शंस आपको you're very strong at, which you're weak at, accordingly आप डिसाइड कर सकते हैं. बट इन जनरल 1 year of focused study, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, एंड दैट इज इनफ फॉर द कैट प्रिपरेशन. रिजल्ट जनरली 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आ जाता है. इस बार कैट 2024 का रिजल्ट 19 दिसंबर को रिलीज हो चुका था. जनरली 3rd वीक ऑफ दिसंबर, एज आई सेड, रिजल्ट आ जाते हैं. फॉर्म फिलिंग, अच्छा, कुछ कॉलेजेस के फॉर्म फिलिंग कैट के पहले डेट्स चली जाती है, कुछ के बाद में चली जाती है. एट बाद में रहती है. इनफैक्ट एट CH Edge Makers वी हैव अ B School सेल जो कि आपको गाइड करता है उस चीज में, एंड वी आर ऑलवेज वी आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू टू गिव यू द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस फॉर कौन से कॉलेज की डेट कब आ रही है, when do you have to fill the form, etc. So you do get the support here. अच्छा, second round process. अब आपने CAT लिख दिया, ठीक है. सेकेंड राउंड प्रोसेस क्या होती है? एज आई सेड दैट सेकेंड राउंड में एवरी B स्कूल हैज इट्स ओन प्रोसीजर. राइट, GD हो गया, ग्रुप डिस्कशन, WAT हो गया, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, एंड देन ये हो गया. और फिर कैट के स्कोर्स और इन चीज़ों के इन एट्रीब्यूट्स को साथ में लेके, स्कोर्स को साथ में लेके, देन बिजनेस स्कूल सिलेक्ट्स यू ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कितना है, जेंडर डाइवर्सिटी उनका कुछ परसेंटेज रहता होगा, राइट, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्कोर्स रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के कुछ मार्क्स रहते हैं, आपके 10th 12th के कुछ परसेंटेज एज इन पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स रहते हैं. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन यू फाइनली गेट सिलेक्टेड. सो दैट्स द सेकेंड राउंड ऑफ प्रोसेस, सेकेंड round of selection, and then you get the final selection into any of the business schools. अच्छा, apart from CAT, क्या सिर्फ कैट लिखना है? कैट तो लिखना ही है, टारगेट तो वो है ही, राइट, बट विच आर द अदर गुड एग्जाम्स विच यू कैन अपीयर फॉर? नंबर 1, ZAT. ZAT की मैंने अभी थोड़े मिनट्स पहले बात की थी, राइट. ZAT, Xavier's Aptitude Test, which are for the Xavier College, right. SNAP, Symbiosis National Aptitude Test for Symbiosis colleges, right. Then we have CMAT, Common Management Aptitude Test, MAT, Management Aptitude Test, Maharashtra CET, Maharashtra Common Entrance Test. These are the exams which you can actually, and CUAT. So these are the exams other than CAT which you can appear for. Please add in your list NMAT as well, Narsi Monji Aptitude Test, which is for the Narsi Monji Institute of Management Studies. Please add all these exams other than CAT in your list.
ऑलराइट, अब क्योंकि हम कैट के बारे में बात कर ही रहे थे, सो कैट की एक बार टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। कैट का नोटिफिकेशन जनरली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाता है। व्हेन आई टॉक अबाउट एप्लीकेशन विंडो, देन एप्लीकेशन विंडो ओपन रहती है फॉर टिल सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ सितंबर। व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जाम सेंटर, व्हाइल यू फिल द फॉर्म ऑफ कैट एग्जाम, देन दे गिव यू द ऑप्शंस। तो आपके पास 5-6 ऑप्शंस रहते हैं, एंड जनरली ऐसा होता है फर्स्ट 2 ऑप्शंस जो आप चूज करते हैं, दे गिव यू द city, they give you the exam center from the first 2 options generally, right? Course and IIM selection. Acha, we recommend you to actually select all the IIMs and all the courses because आपको नहीं पता है कि आपका final percentile कितना आएगा. Remember I was talking to you about the raw score and the scale score. So scale score is every individual's percentile is decided on the scale score. करेक्ट, सो वी रिकमेंड दैट सारे IIMs एंड सारे कोर्सेज आप फिल कर दीजिए बिकॉज आपका फाइनल परसेंटाइल कितना आता है यू डोंट नो अबाउट इट, राइट? सो हमारे पास ऑप्शंस ओपन होने चाहिए। सो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको ये ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन फी, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, जनरल कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फी है। रजिस्ट्रेशन फी फॉर द फॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स 2500, राइट, फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड NCOBC, and for the reserved candidates, that is SC, ST and PWD, it's 1250. कैट एडमिट कार्ड जनरली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में रिलीज होता है, आंसर की सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में रिलीज हो जाती है, और फाइनल रिजल्ट, एज आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट सम टाइम बैक आल्सो, दैट फाइनल रिजल्ट थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में आ जाता है। इस बार 19 दिसंबर को रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, राइट? So if you're appearing for CAT 2025, I hope this information was helpful for you. And if you like this video, do not forget to share and subscribe and hit the bell icon for the latest notifications and updates at CH Edgemakers. Keep learning.